Okay, today we will discuss about the filtering data. What is filtering? As its name suggests that we want to find out some data which have special feature or which we can categorized in different category, right? मतलब कोई ऐसा डाटा हमें अलग निकालना है जो कि हमारे अकॉर्डिंग हमें अलग तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, दैट इज प्लेस। लाइक सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम करनाल, some are from Garonda. I am using GHD for Garonda, right? Then again Karnal, some are Panipat, and some we can take any village name, right? And you can take another name, suppose Barsat, right? Or GHD or GHD. Now if we want to find out the students which are belonging from Garonda only, right? Then we have two methods. First of all, as I told you in our previous class, that we can sort our data. Then we can sort D column. But in this case, data will be sorted in specific order, but it will not find out only data from our choice. Means this time our requirement or our choice is we want to find out the students which are coming from Garonda only, right? तो sorting के अंदर ये सब options नहीं आएंगी. For that we have to use filtering the data option, right? और ये कैसे होगा? I am going to tell you. Look students, on which column you want to filter the data, we have to select it. Suppose I want to filter data according to the place. Now I choose it. After that, go in Home tab, sort and filter, and choose filter. I'm showing again. First of all, select the column, then go to Home tab, then in editing group, choose sort and filter, and then finally choose filter option. When you choose filter option, one button will come automatically. For that I am using again the magnifier tool so that you can see it very clearly. Look students, this button will come automatically on the selected column. Now you can choose from there. When you click on it, it will open the entire list, entire data, which you can use according to you, right? First option is select all, then all the stoppage name, and finally blank. The select all and blank option will always come when you apply this technique, means filtering, on any field, right, or any column. Suppose we want to calculate the students, we want to find out the students which are coming from Garonda. Then first of all you have to unmark select all, like this. When you click on it, all the mark will disappear, and now you can choose your field, that is Garonda. Now click OK button. When you click on it, the result is in front of you. It means now we have only the list of the students which are coming from Garonda only, right beta? Now you can choose another one. Go there, select all,
Then suppose this time I want to find out Barsat students. Click on it. Now you can clearly see that we have 2 students from village Barsat, right? In this way, you can select more than one village also, like Barsat, then Karnal, and then Panipat. We don't want to find out students from which are coming from Gharonda and Kond, right? We choose the Barsat, Karnal, and Panipat. When you click on it, you will find data just according to the sequence which you want. And if you want to see all the data, then again click on select button. The entire column will automatically selected, and then click OK button. In this way, you will find your your data in previous sequence. Right now, if you have any problem in it, you can ask. Is it clear to you? एक बार और Yes, sir. बोलो. May I repeat this? Yes, sir. Okay. Look, beta. First of all, we have to select the column which we want to filter, right? Suppose मैं place के according filter करना चाह रहा हूँ, तो मुझे D column को select करना होगा ऊपर से ही. After that, go in Home tab, जो हमारा first tab है. उसके बाद इसके last में editing group है, यहाँ पर उसमें option है sort and filter. Click on it and choose filter option. जब आप फिल्टर ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्लेस के आगे एक बटन अपीयर हो जाता है अपने आप. ये देखो, ये आ गया है. इसके ऊपर एक ट्रायंगल का निशान है जो हमें ये बताता है कि वी हैव सम ऑप्शन देयर, राइट? व्हेन यू क्लिक ऑन इट, तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है बेटा. इसके अंदर सॉर्टिंग ऑप्शन भी है, कलर भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पॉइंट क्योंकि टाइम लग जाएगा, लेकिन यू कैन मेक फॉर्मेटिंग एज वेल, वेरी इजी स्टेप्स. उसके बाद सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का मतलब क्या है कि नाउ ऑल द डाटा इज सिलेक्टेड, सारा डाटा सिलेक्ट है. आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल के मार्क को अनचेक करना होगा. क्लिक किया, अनचेक्ड हो गए सभी के सभी टिक मार्क. अब आपकी जो इच्छा है, जैसा आप चाहते हो, यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू इट. सपोज दिस टाइम आई वांट कोंड एंड घरोंडा. 2 भी कर सकते हो एक साथ में, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, ठीक है. और सारे करने हो तो सारे तो होते ही हमारे पास, नो प्रॉब्लम. तो ओके आप प्रेस कर दोगे तो आप पाओगे कि घरोंडा कोंड और कोंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा हमारे पास आ गया है. लेकिन ये जो डाटा आएगा ये आपको सॉर्टिंग फॉर्म में नहीं आएगा. ये आपको जो ऑलरेडी सीक्वेंस है आपका, जैसे पहले 2 था, देन 5, देन 6, देन 9, देन 10, इसके अकॉर्डिंग ये डाटा आपके पास आएगा. अगर आपको इसको सॉर्टिंग भी करना है, देन यू कैन अप्लाई सॉर्ट ऑप्शन ऑफ इट. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि यहाँ से डाटा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सॉर्ट कर देते हैं कस्टम सॉर्ट पे जाके. और कौन सा करना है हमें, ए वाला, तो हम जाएंगे ए पे, तो ये ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ सकता है, ठीक है. या फिर आपको करना है डी पे, देन चूज डी दिस टाइम, और ए टू जेड आपने कर दिया, ओके कर दिया. नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट द स्टूडेंट्स डिटेल which are coming from Gharonda, it is in first 3 rows and next 2 rows are occupied by the Kond student, right? I hope this time it is much clear to you. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, कोई भी क्वेरी हो बेटा इससे रिलेटेड पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मूव. No, sir. क्योंकि इस लेसन के अंदर आपकी, मैंने जैसे उस दिन बताया था आपको
कि हम एक्सेल के अंदर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, यानी इफ कंडीशंस भी लगा सकते हैं, राइट। तो वो कंडीशन में आपको जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम ले जाएगा, और लेकिन बहुत अच्छी कमांड है वो, नेक्स्ट टाइम हम वही करेंगे। तो यहाँ पर ये लेसन हमारा ओवर हो जाता है बेटा, ठीक है, क्योंकि एक्सेल के हमारे पास टोटल जो लेसन्स हैं वो हमारे पास टोटल लेसन हमारे पास, जैसे ये एक लेसन हमारा खत्म हो गया और इसके बाद हमारे पास एक लेसन और है एक्सेल का, ये लेसन 2 खत्म हुआ हमारा, क्योंकि 1 में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, राइट। तो अब इसके अंदर वो लेसन खत्म हो गया हमारा 1 में, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। अब इसके बाद हमने जो शुरू करना है ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा इसका लेसन 2, यानी बुक का लेसन 14 बट एक्सेल का लेसन 2 यानी पार्ट 2। तो यहां तक अगर कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप बताइए, अदरवाइज फिर लेसन इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। मतलब एनी प्रॉब्लम? यस, टिल नाउ एनी प्रॉब्लम बेटा? Okay, let's start No, our next lesson, that is lesson number 14, Microsoft Excel 2010 part 2. In this lesson we will focus on the formatting of the data, right? Formatting means what? Formatting means to beautify the text, कि कैसे हमारे फाइल को, कैसे हमारे डाटा को हम सुंदर बना सकते हैं, ठीक है, एक प्रेजेंटेबल मैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। This is very important. Please mute yourself. Okay, first of all, फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, लेट्स डिस्कस। नंबर 1, सिलेक्टिंग, बंद दरिया खटाई। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay, first of all we will discuss which kind of formatting we can apply on our text. Number 1, selecting the desired range, कि सबसे पहले हम जितना डाटा हमें चाहिए जो हमें फॉर्मेट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। एंड अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट यूजिंग द टूल्स प्रेजेंट ऑन द होम टैब। ज्यादातर टूल्स हमारे जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है होम टैब के अंदर ही हमें सारे टूल मिल जाते हैं, राइट। नंबर 2, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रेंज ऑन द सेल्स एंड सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन। दूसरे तरीके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा हम सिलेक्ट करें उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसमें फॉर्मेट सेल ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज सिलेक्टिंग द डिजायर्ड रेंज ऑफ द सेल एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन इन द सेल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब। कि यहाँ पर आप देखोगे कि होम टैब के ऊपर हमने क्लिक करना है और इसके अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेटिंग करने के लिए, जैसे ये आपका स्टाइल ऑप्शन आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है फॉन्ट ऑप्शन है, अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं, नंबर ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे फॉर्मेटेड टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स जो भी फॉर्मेट आपने करना है वो सारा का सारा यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी आप अवेलेबल हो जाते हैं, यू कैन अप्लाई ऑल द इफेक्ट्स ऑन योर डाटा। बट तीनों ही तरीके में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है कि फर्स्ट सिलेक्ट द रेंज या सिलेक्ट द डाटा। हमें सबसे पहले डाटा सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर इफेक्ट्स लग सकते हैं। अगर आपने डाटा सिलेक्ट नहीं किया है तो कंप्यूटर ये नहीं समझ पाएगा कि किस डाटा के ऊपर आप ये इफेक्ट्स चाहते हो, राइट। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, आपको थोड़ा पता लगेगा इसके बारे में। अब मैंने इसको टेक्स्ट को एक बार फिल्टर में ऑल डाटा ले आते हैं, सिलेक्ट ऑल, और यहां से नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द फिल्टर ऑप्शन लाइक दिस। हमने सारी फॉर्मेटिंग हटा दी है इसकी, ओके। तो छोटी छोटी फॉर्मेटिंग के साथ हम चलेंगे।
सबसे ऊपर, सबसे पहले हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, जस्ट वेट। After that, you can make them in center alignment like this, यानी कि इसके कॉलम के बिल्कुल बीच में ही आ जाएगा। मैंने इसको यहां से लिया है अलाइनमेंट ऑप्शन से, राइट। उसके बाद इफ यू वांट टू चेंज देयर कलर, सेम अगेन वही, सब मैं होम टैब से ही कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ऑल द ऑप्शंस वी हैव ऑन होम टैब ओनली, राइट। तो यहां पर मैं गया हूं यहाँ पे, तो इसमें फॉन्ट ऑप्शन के अंदर you can choose any color. Suppose this time I am choosing red color. What about data? Data के लिए you can choose another color which you want. You can make bold as well. You can align them center also. Suppose ये आपको center नहीं चाहिए तो इसको left कर दो, right? तो इस तरह से आप अपने टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो मैंने बताया बहुत ही इजी मेथड जो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड हमें क्या कहता है? दूसरे मेथड के अंदर हमें डाटा के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना होगा। पहले मैं डाटा लेके चल रहा हूं टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट के अंदर कोई ज्यादा कुछ करने को नहीं होता है। सपोज दिस इज आवर टेक्सचुअल डाटा और उसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, राइट। तो इसको प्लेसेस के बीच में लेके आ सकते हो, ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकते हो। इसके यहां पर इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। लुक, 1 बाय 1 करना है तो यहां पर ये एक ऑप्शन होती है। इस बटन का नाम क्या है? इस बटन का नाम है हमारे पास ओरिएंटेशन, राइट। ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। देखो चेंज होता जा रहा है। इस तरह भी कर सकते हो, बैक साइड आ गया, ठीक है। और इसको वापस, और यानी जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूं एंड कम बैक फ्रॉम ऑन द स्टार्टिंग पोजीशन, राइट। आफ्टर दैट कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड चेंज यू कैन चेंज, बैकग्राउंड कलर यू कैन चेंज फ्रॉम देयर लाइक दिस। वेरी इजी स्टेप्स, राइट ना, क्योंकि ये बातें तो आप मेरे ख्याल से 4th 5th से करते आ रहे हैं अभी तक, तो थोड़ा सा एक रिवीजन है इस लेसन के अंदर। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग मेन पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज फॉर्मेटिंग नंबर्स। कि अगर आपको नंबर्स को फॉर्मेट करना है तो हाउ मेनी वेज यू हैव in which you can format your numerical data, means number, right। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें डाटा को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली है, इसके बाद राइट क्लिक करो इस पे और फॉर्मेट सेल ऑप्शन ले लेते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द रेंज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इनिशियल स्टेप एंड वेरी कंपल्सरी स्टेप एज वेल, राइट। ये तो करना ही है। सबसे पहले हमने डाटा की रेंज सिलेक्ट की, डाटा की रेंज के अंदर ही कहीं पर राइट क्लिक कर दिया। द शॉर्टकट मेन्यू विल कम अप, फ्रॉम देयर यू कैन चूज फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन। व्हेन यू click on it, you will have another dialog box, you can see very clearly, right। And I think I have to zoom it so that you can see very clear. Look now, I think it is quite clear now to everyone. Look बेटा, numbers के लिए हमारे पास ये सारी चीजें हैं कि नंबर्स को आप कितनी तरह कर सकते हो। दिस इज आवर जनरल कैटेगरी, उसका एक सैंपल यानी प्रीव्यू आपको दिखाया गया है कि कैसा डाटा आएगा। फिर आप गए हैं नंबर के ऊपर, ठीक है। नंबर के अंदर देखो डेसिमल अगर आपने लगाना है, यू कैन चेक इन सैंपल कॉर्नर, राइट। डेसिमल 2 है, 1 कर दोगे तो ये देखो 1 हो गया। और इनमें से भी कौन सी ऑप्शन आपको चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नंबर चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि कोमा लग जाए। ये देखो यहां पर हर एक के नीचे कोमा आ जाएगा।
हटाना चाहते हो हटा सकते हो, ठीक। अब डेसिमल पार्ट आपने बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो और वहां पे होम टैब से भी, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए डाटा कैसा हो जाता है। डाटा के ऊपर ये इफेक्ट आ गया। पहले डाटा जनरल था, उसमें कोई भी डेसिमल पोर्शन नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसमें डेसिमल पोर्शन ऐड कर दिया। इसको हटाने के लिए वापस जाओगे, राइट क्लिक करना है, जनरल पे जाओगे और ओके कर दोगे। ये देखो इट विल चेंज अगेन। आई होप इट इज लिटल बिट ट्रिकी बट नॉट टफ, राइट ना। थोड़ा सा ट्रिकी तो है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। उसके बाद आप अगर चाहो तो और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हो। करेंसी साइन अगर आपने देना है तो कौन सा करेंसी साइन आपको चाहिए, you can see there Indian currency sign is also there. ये ऑलमोस्ट दुनिया की सभी करेंसी साइन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक। ये रहे देखो, ठीक है। ये नेपाली इंडिया, मराठी इंडिया, यू कैन चूज एनीवन, पंजाबी इंडिया, संस्कृत इंडिया, राइट। सपोज हमने ये ले लिया, तो ये देखो सारों के आगे ये साइन आ जाएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन। यू कैन ऑब्जर्व द चेंज दैट एवरी डाटा हैज रुपीज साइन इन फ्रंट ऑफ इट, राइट बेटा। तो इस तरह से अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा ऐसा है जिसके अंदर आपको मनी शो करना है, अमाउंट शो करना है, देन यू कैन यूज दिस सिंबल, राइट। और फिर वापस जाओगे, अगेन ओके। In this way you can learn how you can format the numerical data. तो ये हो गया। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज हो जाता है, यू नो एवरीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स, सेंटर, लेफ्ट, you can make the change from there, राइट बेटा। तो ये इस तरह से, और साथ में अलाइनमेंट के अंदर यहां पर भी है, देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, suppose I am selecting this Karnal, right। ये देखो हल्का सा स्लाइड चेंज होता नजर आएगा। जितना भी बड़ा सेल है देखो स्लाइड नीचे हो गया और ये बिल्कुल बीच में आ गया, राइट। और इधर से बीच में कर सकते हो आप, ये देखो और थोड़ा अंदर चला जाएगा, इसमें बीच में सेंटर में आ गया। तो ऑल द ऑप्शंस यू कैन फाइंड ऑन होम टैब ओनली, ठीक है। कलरिंग चेंज हो सकता है, फॉन्ट चेंज हो सकता है। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सपोज आपने ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा दी है एंड द सेम फॉर्मेटिंग यू वांट ऑन नेम आल्सो, राइट। तो देयर इज नो नीड टू select the data again make all the formatting effects, no need of it. Just select any one, listen carefully, just select any one cell, from there you can apply all formatting effects on the new cells like this। मैंने इसको select किया और यहाँ पे मैं ऑप्शन ले लेता हूँ होम के अंदर, that is format painter, click on it। ये हो गया, देखो हाईलाइट हो गया है। और जहां पे जिस डाटा पे मुझे चाहिए उसके ऊपर मैं सिलेक्ट करके और इस माउस बटन को रिलीज कर दूंगा, और जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा यू कैन ऑब्जर्व द चेंज, लुक नाउ। यानी ये जो इफेक्ट हमने जिस सेल का उठाया
वो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से सेम अप्लाई हो गया बाकी के सेल पर एक साथ ही। ठीक है, अगर आप इसको ये इफेक्ट यहां भी डालना चाहते हैं तो वहां भी डाल सकते हैं, मतलब सारे डाटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यू नीड ओनली वन। जैसे यहां पे हमें करना है, इसको सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर एंड क्लिक ऑन इट। Okay students, I think there was some problem, net problem. Okay, in this way you can